کے اندازہ ہے پاکستانی عوام پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہے۔ وزیراعظم نے ملک میں پیٹرول ڈیزل کا بحران نہیں ہونے دیا۔ خواتین کی آن لائن ہراسگی کے سدباب کے لیے سسٹم تشکیل دیا جا رہا ہے۔ کوشش ہے کہ آئندہ سال طلبہ کو 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دوں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے 21ویں کانوکیشن سے خطاب۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ ہراسگی کا شکار خواتین درخواست دیں، ان کا نام راز میں رکھا جائے گا اور ملزم کو سزا دلوائی جائے گی۔ آن لائن ہراسگی کے سدباب کے لیے سسٹم تشکیل دیا جا رہا ہے۔ کوشش ہے آنے والے سال میں 1 لاکھ الیکٹرک بائکس طلبہ کو دوں۔ مجھے پتہ چل جائے کہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی بازار میں چلتے چلتے کسی راستے میں سڑک پہ کسی خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے یا کسی خاتون کو ہراساں کرنے کی ہیرس کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، بے حرمتی ہوئی ہے، تو میں جب تک قانون کے شکنجے اس تک نہ پہنچے، کرمنل تک، میں آرام سے نہیں بیٹھتی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا کل پنجاب بھر میں 1 لاکھ گھر مکمل ہو رہے ہیں۔ مارکا حق میں کامیابی کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کو عزت ملی۔ آج پاکستان ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اندازہ ہے پاکستانی عوام پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں پیٹرول ڈیزل کا بحران پیدا نہیں ہونے دیا۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی فتح کو، اس کی جیت کو سیلیبریٹ کرنا بطور پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا فرض ہے۔ یہ وہی ملک ہے جس کو لوگوں نے ایک ناکام ملک سمجھ کے دنیا نے اس کو سائیڈ لائن کر دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ وہی ملک ہے جہاں پہ کرکٹ ٹیمز بھی نہیں آتی تھی۔ آج وہ ملک ہے، وہ پاکستان ملک ہمارا، وہ دنیا میں بڑے بڑے ممالک کے درمیان مصالحت قرار ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا کانوکیشن سے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ گرین بسز کو ہدایت کی ہے کہ تعلیمی اداروں کے قریب رکیں۔ بعد ازاں وزیراعلیٰ نے طالبات میں اسناد اور میڈلز بھی تقسیم کیے۔ فلم انڈسٹری کی بحالی پنجاب حکومت کا عزم۔ پنجاب فلم سٹی اتھارٹی ایکٹ پورے صوبے میں نافذ ہو گیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے پنجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد قانون پر دستخط کر دیے۔ پنجاب فلم سٹی اتھارٹی ایکٹ 2026 پورے صوبے میں نافذ العمل ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے مسودہ قانون پر دستخط کر دیے۔ نئے قانون کے تحت پنجاب فلم سٹی اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سینما اور موشن پکچر انڈسٹری کی ترقی اور جدت، مقامی اور بین الاقوامی پروڈکشنز کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔ فلم انڈسٹری کے لوگوں کی مہارت بڑھانے کے لیے ملک اور بیرون ملک تربیتی پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا۔ پنجاب فلم سٹی اتھارٹی کے ذریعے سینما کی ترقی کے لیے ون ونڈو سہولت کاری مہیا کی جائے گی۔ دیہی اور پسماندہ علاقوں میں موبائل، اوپن ایئر اور کمیونٹی سینما قائم کیے جائیں گے۔ صوبہ بھر میں بند سینما ہالز کی جدید سہولیات سے بحالی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ فلم انڈسٹری کی بہتری اور ترقی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے تحت پاکستانی پرانی فلموں کی ڈیجیٹائزیشن بھی ہوگی۔ پرانی فلموں اور سینما ورثے کو محفوظ اور آرکائیو کیا جائے گا۔ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ پنجاب اسمبلی کا 15 روزہ اجلاس قوم کو 6 کروڑ سے زائد میں پڑا۔ اجلاس میں 15 نشستیں ہوئیں۔ مسلم لیگ نون کے رکن سمیع اللہ خان نے کہا کہ اجلاس پر معمول کے مطابق ہی خرچہ آیا ہے۔ محمد یاسین کی رپورٹ۔ پنجاب اسمبلی کا غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہونے والا 15 روزہ اجلاس قوم کو 6 کروڑ سے زائد میں پڑا۔ اجلاس میں ارکان اسمبلی کی 3166 حاضریاں لگائی گئیں۔ حاضر ہونے والے ارکان کو 1 کروڑ 90 لاکھ روپے ملیں گے۔ اجلاس شروع ہونے سے 4 روز پہلے اور 4 روز بعد یعنی 8 روز کا پورا معاوضہ بھی پورے ایوان کے تمام 369 ارکان کو 1 کروڑ 77 لاکھ 12 ہزار روپے ملیں گے۔ ہر اجلاس کے دوران 6000 روپے یومیہ، 15 روپے فی کلومیٹر آنے اور جانے کا سفری الاؤنس، کنوینر الاؤنس 1000 روپے یومیہ، ڈیلی الاؤنس 2000 روپے ملتے ہیں۔ اضافی ٹریولنگ الاؤنس 3 لاکھ روپے سالانہ۔ جو اراکین سرکاری رہائش نہیں لیتے ان کو 3000 روپے یومیہ دیے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی سمیع اللہ خان نے کہا ہے اجلاس پر معمول کے مطابق ہی خرچہ آیا ہے۔ اجلاس میں 20 بلوں پر قانون سازی ہوئی۔ مارکہ حق کے حوالے سے 1 روز مخصوص کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔
तालीमी मैदान का रुख करें तो आपको खबर दें कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान समर कैंप्स की इजाज़त देने का फैसला 1 माह के लिए समर कैंप्स की इजाज़त गर्मियों की छुट्टियों में शुरू से दी जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि सिलेबस मुकम्मल करवाने के लिए समर कैंप्स की इजाज़त दी जाएगी। छुट्टियों के पहले हफ्ते से ही समर कैंप्स की इजाज़त देने जा रहे हैं। स्कूलों में समर कैंप्स सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक लग सकेंगे। पंजाब काबीना की इजाज़त से स्कूलों में 3 माह की छुट्टियां दी गईं। मौसमी शिद्दत और हालात को देखते हुए 23 अगस्त तक छुट्टियां दी गई हैं। मौसमी सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूलों में हफ्ते की छुट्टी बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पंजाब में कम तलबा वाले सरकारी कॉलेजेस भी आउटसोर्स करने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन ने नई पॉलिसी तैयार कर ली। 100 से 150 तलबा तक इनरोलमेंट वाले कॉलेजेस को मरहलावार निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने कम तलबा वाले सरकारी कॉलेजेस की आउटसोर्सिंग की पॉलिसी तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक 100 से 150 तलबा तक इनरोलमेंट रखने वाले कॉलेजेस को मरहलावार निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब भर में 150 तलबा तक इनरोलमेंट वाले 300 से जायद कॉलेजेस मौजूद हैं, जबकि 100 तलबा तक इनरोलमेंट रखने वाले करीब 100 कॉलेजेस भी आउटसोर्सिंग प्लान का हिस्सा हैं। हुकाम का कहना है कि कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस मंसूबे का मकसद तालीमी मयार में बेहतरी लाना है। ज़राए के मुताबिक कई दीही और दूर दराज इलाकों के कॉलेजेस भी आउटसोर्सिंग लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। महकमा हायर एजुकेशन जल्द हतमी समरी मंजूरी के लिए हुकूमत पंजाब को अरसाल करेगा। पंजाब हुकूमत इससे कबल सूबे भर के 13,000 से जायद स्कूल भी आउटसोर्स कर चुकी है। असातिज़ा और तलबा की जानिब से भी कॉलेजेस को आउटसोर्स करने की पॉलिसी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ना हो सका। शहरियों को कवानीन की मामूली खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने जारी। ट्रैफिक वार्डन्स मोटरसाइकिल सवारों को 2-2 हज़ार के चलान पकड़ा रहे हैं। मुंतसिर हुसैन की रिपोर्ट। महकमा कानून के जारी करदा ट्रैफिक जुर्मानों में कमी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद न हो सका। ट्रैफिक वार्डन्स पुराने कवानीन के तहत शहरियों को भारी जुर्माने करने में मसरूफ। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवरों के लिए जुर्माना 2,000 से कम करके 1,000 रुपए किया गया। ट्रैफिक कवानीन की मामूली खिलाफ वर्जियों पर भी मोटरसाइकिल सवारों को 2,000 के चालान पकड़ाए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हमें ट्रैफिक जुर्मानों में कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। कुछ भी नहीं अमल दरामद हो रहा। हर जगह पर जिधर मर्जी आप चाहिए 2,000 रुपये का चलान काट रहे हैं। पहले ये कहेंगे हेलमेट है, हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, इशारे नहीं है, राड लगाए। तर्जुमान लाहौर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का नोटिफिकेशन जैसे ही हमारे पास आया तो उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। शहर के मेगा सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे फाइलों में दब कर रह गए। खाड़क स्टॉप से फिरोजपुर रोड, स्कीम मोड़ से गुलबर्ग और जेल रोड से मुल्तान रोड तक मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार ना कर सके। शहरियों को रिलीफ देने वाले बड़े मंसूबे आइंदा बजट से भी गायब हैं। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। लाहौर में बढ़ते ट्रैफिक और शहरियों की मुश्किलात कम करने के लिए मुतअद्दिद मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे तैयार किए गए, मगर वक्त के साथ ये मंसूबे फाइलों और इजलासों तक महदूद होकर रह गए। खाड़क स्टॉप से फिरोजपुर रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा अहम तस्वुर किया जा रहा था। स्कीम मोड़ से गुलबर्ग तक मुजव्वजा सिग्नल फ्री कॉरिडोर को बड़ी सहूलत करार दिया गया था। जेल रोड से मुल्तान रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी लाहौर की ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा समझा जा रहा था। अरबों रुपए के मंसूबे के लिए इब्तदाई तखमीने और तकनीकी तजावीज तैयार की गयी, मगर अमली तामीराती काम शुरू न हो सका। ज़राए के मुताबिक हुकूमतों की तरजीहात तब्दील होने, माली वसाइल की तकसीम और नए मंसूबों पर तवज्जो मरकूज होने के बायस सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे पस मंजर में जाते रहे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सरकारी अफसरान की रवायती सुस्ती। पंजाब हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया का पेज 2 साल से अपडेट ना किया जा सका। पंजाब हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़िला इंतज़ामिया का पेज ताहाल अपडेट ना हो सका। तबादलों के बावजूद 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स के नाम ताहाल पेज पर मौजूद हैं। मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर्स मॉडल टाउन, सदर, कैंट, रावी और HR के नाम ताहाल पेज पर नहीं दिए गए। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में शहर की तहसीलें 10 की बजाय ताहाल 5 दर्ज हैं। शहरियों को ज़िला इंतज़ामिया की पुरानी मालूमात के बायस मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक वेबसाइट को जल्द नई मालूमात के मुताबिक अपडेट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि शहर का ट्रैफिक सिस्टम इशारों से नहीं जदीद टेक्नोलॉजी से चलेगा। पैदल चलने वालों के लिए स्मार्ट पेलिकन सिग्नल्स मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया। टीपा ने अहम चौराहों पर खुदकार ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नस्ब करने का फैसला कर लिया। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट।
लाहौर में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव, हादसात और पैदल चलने वालों को दरपेश खतरात के पेश नज़र टीपा ने जदीद पेलिकन सिग्नल्स नस्ब करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। शहर की 20 से जायद अहम शाहराहों और चौराहों पर जदीद खुदकार सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जाएगा। मंसूबे के लिए 4 मुख्तलिफ पैकेजेस तश्कील दे दिए गए हैं। पैकेज 1 के तहत पेलिकन सिग्नल्स और वीडियो व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम 28 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से नस्ब किए जाएंगे। पैकेज 2 के लिए 14 करोड़ 79 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। पैकेज 3 पर 11 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च होंगे। पैकेज 4 के तहत 5 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ शाहराहों पर सिग्नल्स नस्ब किए जाएंगे। मंसूबा टीपा और सिटी ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से तैयार किया गया है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग को भी जदीद LED लाइट्स के साथ सिग्नलिंग सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा ताकि शहरियों को रात के औकात में भी महफूज क्रॉसिंग की सहूलत हासिल हो सके। मंसूबे पर अमली काम आइंदा चंद हफ्तों में शुरू होने का इम्कान है। तमाम तनसीबात 6 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाएंगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कम आमदन तबके के लिए पंजाब हुकूमत का तारीखी फलाही मंसूबा है। शहरी आबादी में इजाफे के तनाजुर में सस्ते और मयारी घरों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन रवा माह अज़रबैजान में होने वाले वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन से DG फाटा सिकंदर ज़िशान ने मुलाकात की और वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और पंजाब हुकूमत के अफोर्डेबल हाउसिंग के जारी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वर्ल्ड अर्बन फोरम के दौरान सरमाकारों और बैनुल-अक़वामी इदारों से मुलाकातों के शेड्यूल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत के दौरान पंजाब हुकूमत के अवाम दोस्त हाउसिंग इक़दामात को उजागर करने की हिदायत की और बारिशी पानी को महफूज बनाकर ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बेहतर करने का मंसूबा। करोड़ों रुपए से बनने वाला अंडरग्राउंड वाटर टैंक पानी ज़ख़ीरा तो कर लिया गया मगर शहर का एक्वाफायर रिचार्ज ना हो सका। मुतादिद मकामात पर रिचार्जिंग वेल्स ताहाल मुकम्मल ना होने से कीमती बारिशी पानी ड्रेनों में बहाया जाने लगा। वासा के बुलंद दावों के बावजूद ज़ेर ज़मीन पानी बचाने का मंसूबा मकसद से दूर दिखाई दे रहा है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए शुरू किया गया अंडरग्राउंड वाटर टैंक मंसूबा ताहाल अपने असल मकासद हासिल न कर सका। शहर भर में तामीर किए जाने वाले मुतअद्दिद वाटर टैंक्स में बारिशों का पानी जमा तो किया गया मगर उसे ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर तक मुंतकिल करने का मौसर निज़ाम फ़ाल न होने के बाद ये कीमती ज़ख़ीरा इस्तेमाल में न आ सका। मंसूबे के तहत हर वाटर टैंक के साथ ड्राई वेल्स या रिचार्जिंग वेल्स तामीर होना थे ताकि जमाशुदा पानी ज़मीन में जज्ब होकर एक्वाफायर को रिचार्ज कर सके। ताहम बेशतर मकामात पर ये वेल्स मुकम्मल न हो सके या ताहाल फंक्शनल ही न बनाए जा सके। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में कायम शहर के सबसे बड़े वाटर टैंक को फाल करार दिया जा रहा है। ताहम इसके साथ तामीर किए जाने वाले रिचार्जिंग कुएं अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक बारिशों के दौरान मुतअद्दिद वाटर टैंक्स में जमा होने वाला पानी पंपिंग मशीनरी और वाटर बाउजर के जरिए निकाल कर ड्रेनों में बहाया जाता रहा जिससे न सिर्फ कीमती बारिशी पानी ज़ाया हुआ बल्कि मंसूबे के बुनियादी तस्वर पर भी सवाल उठने लगे। वासा इंतजामिया का कहना है कि नए वाटर टैंक के साथ ड्राई वेल्स तामीर किए जा रहे हैं। एक्वाफायर रिचार्जिंग करने और दीगर मुतबादिल ज़राए पर भी काम किया जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी का अहम फैसला, मरीज की टेस्टिंग रिपोर्ट पर अब रेस्टोरेंट सील होगा। अस्पतालों से डाटा लेकर फूड अथॉरिटी मशकूक होटलों को फौरी सील करेगी। डेंगू की तरह फूड हाइजीन की चेकिंग भी अब लाइव डैशबोर्ड पर होगी। सुबह भर में फूड हाइजीन डैशबोर्ड 5000 अस्पतालों का लाइव डेटा देंगे। लाहौर के 17 बड़े सरकारी अस्पतालों में फूड हाइजीन लाइव ट्रैकिंग पर काम शुरू। बाहर का खाना खाने वाले मरीजों के लाइव पोर्टल की तैयारी शुरू। होटल्स और ढाबों पर एक्शन। बीमार मरीज का टेस्ट ही सील ऑर्डर बनेगा। अस्पतालों में जंक फूड से बीमार होने वाले मरीजों के रिपोर्ट के बाद मुतलका निजी रेस्टोरेंट की मुकम्मल चेकिंग की जाएगी। रिपोर्ट मंफी आने पर कारोबार को फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत सजा के तौर पर जुर्माना और सील किया जाएगा। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा का कहना है कि फूड अथॉरिटी और अस्पताल मिलकर डैशबोर्ड बनाएंगे। डेंगू मॉडल पर फूड हाइजीन कंट्रोल होगा। लेस्को का दही और सरहदी इलाकों में बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर्स लगाने का फैसला। इन इलाकों में रवायती मीटर्स की जगह AMI मीटर्स लगाए जाएंगे। लेस्को इंतजामिया ने दही इलाकों में AMI मीटर्स लगाने के लिए वाहका सब डिवीजन के लिए 2500 AMI मीटर्स जारी कर दिए। लेस्को ज़राए के मुताबिक AMI मीटर्स से बिजली इस्तेमाल की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। लेस्को ने हाई लॉसेस फीडर्स पर जदीद स्मार्ट मीटर्स लगाने का अमल तेज़ कर दिया है। AMI मीटर से सरहदी और दही इलाकों में बिजली चोरी की निशानदही पूरी होगी। लाइन लॉसेस कम और रिकवरी बेहतर बनाने के लिए AMI मीटर्स नस्ब होंगे। और आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने के लिए पेशगी इक़दाम जारी। ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन के लिए 15 लाख माहौल दोस्त प्लास्टिक बैग्स की तैयारी का फैसला।
सॉल्ट वेस्ट एजेंसी ने माहौल दोस्त वेस्ट बैग की फराहमी के लिए टेंडर जारी कर दिया। ईद उल अज़हा पर सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने के लिए पेश के इक़दाम जारी। ईद कुर्बान पर सफाई ऑपरेशन के लिए 15 लाख माहौल दोस्त प्लास्टिक बैग्स की तैयारी का फैसला। सॉलिड वेस्ट एजेंसी ने माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स की फराहमी के लिए टेंडर जारी कर दिया। 10,50,000 बड़े जबकि 4,50,000 छोटे वेस्ट बैग्स तैयार किए जाएंगे। बड़े बैग्स 50 से 60 जबकि छोटे बैग्स 20 से 25 किलो गुंजाइश के हामिल होंगे। शहरियों को ईद उल अज़हा पर सब्ज रंग के खसूसी वेस्ट बैग्स फराहम किए जाएंगे। आलाइशों की महफूज तलफी के लिए माहौल दोस्त बैग्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। ईद से कबल लाहौर की तमाम यूनियन काउंसिल्स में मुफ्त बायोडिग्रेडेबल बैग्स दस्तयाब होंगे। शहरी मुतलका यूनियन काउंसिल्स और LWMC के कैंपस से वेस्ट बैग्स मुफ्त हासिल कर सकेंगे। DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहबदीन का कहना है कि बायोडिग्रेडेबल बैग्स शहरियों के लिए ईद उल अज़हा पर बहुत बड़ी सहूलत है, जो माहौल दोस्ती और सफाई में मुआवन साबित होते हैं। जबकि हुकूमत का ईद उल अज़हा से कबल सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहें और पेंशन पेशगी अदा करने का फैसला। वजारत ख़जाना ने मई 2026 की तनख्वाहों और पेंशन की कबल अज़ वक्त अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को 22 मई को अदायगियाँ की जाएंगी। वजारत ख़जाना के मुताबिक ईद उल अज़हा 27 या 28 मई 2026 को मुतवक्के है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को तनख्वाहों और पेंशन की जल्द अदायगी के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजारत ख़जाना ने मुतल्लिका इदारों को फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है।